Hello, friends. I'm Dr. Vandana, MPT Cardiopulmonary. Today, I'm going to discuss about the topic respiratory muscle training. Before going further, this is our respiratory muscles. In this diagram, we can see principal inspiratory muscles. मेन हमारी इंस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो बकेट हैंडल मूवमेंट कराती हैं हमारे रिब केज की और एक्सपेंड करती हैं, और डायफ्राम पिस्टन मूवमेंट करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, जिससे लंग को एक्सपेंड होने का स्पेस मिले. तो ये हमारी प्रिंसिपल मसल्स होती हैं ब्रीदिंग में. एंड एक्सपिरेशन जो होती है वो इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ लंग्स की वजह से और डायफ्राम और रिब केज के इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से क्वाइटली अपने आप हो जाती है. ठीक है. असेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन आर SCM, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, स्क्लेनी ग्रुप एंड पेक्टोरियलिस माइनर. एंड फॉर active breathing, internal intercostal muscle, abdominalis and quadratus lumborum are responsible. Okay. Now, what is RMT? What is respiratory muscle training? Respiratory muscle training is a technique which aims to enhance the function of respiratory muscles by a specific group of exercises. Respiratory muscle training also improves the muscle function and helps to reduce the dyspnea on exertion. Okay. And RMT has many beneficial effects on healthy people as well as on athletic performances, and it's normally aimed at the people who have respiratory conditions like asthma, bronchitis, emphysema and COPD. Okay. Respiratory muscle training is like a dumbbells for respiratory muscles. So response to RMT, like any other skeletal muscle responded to a training stimuli, in the same way our respiratory muscles respond. Respiratory muscle respond to the training stimuli same as skeletal muscles in structural adaptation as well as in functional adaptation. Structural adaptations, change in muscle fiber type, change in cross sectional area, and functional adaptations like it improves the muscle strength, speed, endurance, power, performance, peak inspiratory flow, maximal inspiratory and expiratory pressures. Indications of respiratory muscle training are: it can be indicated to anyone who wants to improve their exercise tolerance, who have dyspnea, exercise intolerance, any athlete or sports person. Okay. And in certain classes of diseases like respiratory, cardiac or neuromuscular condition, or after surgery and general aging, we can recommend those people the respiratory muscle training. It is very helpful. And in specific conditions like amyotrophic lateral sclerosis, एक मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है. इसमें क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं वो एट्रोफाइड एंड वीक होती चली जाती हैं. तो ऐसे में जो मसल डिस्ट्रॉफी और वीकनेस होती है उसको ओवरकम करने के लिए, रेस्पिरेटरी मसल्स को के वीकनेस को और ट्रॉफी को ओवरकम करने के लिए हमें मसल ट्रेनिंग करानी चाहिए ऐसे पेशेंट्स में. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो भी रिब केज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है. आर्थराइटिस, आर्टिफिशियल वेंटिलेटेड पेशेंट्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस, cancer, cerebral palsy, chronic heart failure, COPD, cystic fibrosis, diabetes, diaphragm paralysis, etc. In all these conditions, we can recommend RMT. Forms of RMT. Training method can be divided into two parts, that is resistance training and endurance training. Resistance training is very valid. Resistance training is like as dumbbell training for the respiratory muscles. Okay. Inspiratory pressure threshold is by far the most common
Used, research and validated method of RMT. User breathe through a device that contains a pressure loaded inspiratory valve and an unloaded expiratory flap valve. इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में एक डिवाइस होता है जिसमें हम पेशेंट को डीप ब्रीथ, जिसके थ्रू हमें डीप ब्रीथ इन करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है, एंड एक्सपीरेशन भी पेशेंट उसी के थ्रू माउथ करता है, उसी के थ्रू करता है माउथ से, लेकिन वो रेजिस्टेंस फ्री होती है एक्सपीरेशन जो होती है, ठीक है। और ये हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग है पेशेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम नोज क्लिप लगा देते हैं जिससे वो नाक से सांस ना ले पाए, नाक से और मुंह से ही पूरा सांस खींच पाए, ठीक है। तो देन फर्दर इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग। यूज अ टेक्निक कॉल्ड वॉलेंट्री आइसोकैपनिक hyperventilation which requires people to maintain high level of respiration for up to 40 minutes. It utilizes a hyperventilation method and employs a partial rebreathing circuit to prevent hypocapnia. इसमें क्या होता है कि वॉलेंट्रली आइसोकैपनिक हाइपरवेंटिलेशन कराते हैं। हाइपरवेंटिलेशन मीन्स बहुत तेजी से सांस हाइपरवेंटिलेट कराते हैं हम पेशेंट को, बट आइसोकैपनिक एक सर्किट होता है इसमें, उसमें हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन्ड रखते हैं जिससे पेशेंट हाइपोकैपनिक ना हो, ओके। ये यूजुअली हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया वाले पेशेंट में जल्दी रिकवर करने के लिए, आफ्टर सर्जरी वेंटिलेशन पे से वीनिंग ऑफ करने के लिए, एनेस्थीसिया को वॉश आउट करने के लिए, बॉडी में से लंग्स में से जल्दी वॉश आउट करने के लिए हम ये मेनली टेक्निक यूज़ करते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग। बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हम मेनली फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा पावरफुल मसल होगी वो वर्क भी उतनी ज़्यादा देर तक कर पाएगी। एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होता है कि कितनी ज़्यादा देर तक वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाती है। ऑब्वियसली एक पावरफुल मसल उस चीज़ को वर्कलोड को ज़्यादा देर तक सस्टेन भी कर पाएगी, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। सम ऑफ आवर इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग डिवाइसेस आर देयर। This is mouthpiece, inspiratory valve, expiratory valve, spring loaded है inspiratory valve। एडजस्ट कर सकते हैं हम इसके एक्सेस को और रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। इस डिवाइस में हम इसे ब्रीदर बोलते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर्स, जो ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। ब्रीदर्स से एक्सरसाइज करने की वजह से ब्रेथलेसनेस पेशेंट में कम फील होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। आफ्टर 4 वीक्स रिजल्ट्स सामने आते हैं। सम स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो हैं हमारी रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इनएडुकेट रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन, reduced respiratory muscle strength, dyspnea, orthopnea, expiratory muscle flow limitation, hyperventilation, reduced respiratory system compliance, elevated ratio of dead space to tidal volume, tachypnea, hypoxemia, hypercapnia, poor cough function, inability to breathe without aid of mechanical ventilation. Physiological mechanism. The physiological mechanism which is working behind this RMT is optimizing blood flow distribution. IMT जब हम करते हैं, मसल ट्रेनिंग जब हम करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उसका से क्या होता है, व्हेन वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द लेग डिक्रीजेस। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है हमारा, और जब वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा वहीं पर ऑक्सीजन अपटेक होगा एंड लेग्स तक ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम मेटाबोलिज्म द ब्लड फ्लो टू द लेग्स और वी कैन से लिम्स,
Okay, but when we do the muscle inspiratory muscle training, it affects by increasing the intensity of inspiratory work required before the reflex is triggered. And if the activation of reflex is abolished or delayed, it is possible to maintain blood flow to the legs for longer, than thus enhancing the performance. Okay, मेटाबॉल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी मेटाबोलाइट मसल में एक्यूमुलेट होता है तो नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को स्टिमुलस पहुंचाती है जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ट्रिगर करता है, जिससे क्या होता है कि वो मैसेज सेंड करती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में। तो उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमारे लेग्स में भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। बट इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग से क्या होता है, ये रिफ्लेक्स जो होता है वो डिले होता है। ओके, क्योंकि वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है और मसल्स जो होती हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उन्हें वर्क ऑफ ब्रीदिंग लगता ही नहीं है, या तो वो एबॉलिश ही कर देती हैं या डिले करती हैं इस रिफ्लेक्स को, जिससे ब्लड फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहता है। ओके, अटेन्यूएशन ऑफ सेंट्रल फटीग, exercise adaptation, increase cerebral oxygenation and positive improvement in central fatigue. Okay, reduce sense of respiratory and peripheral effort by manipulating the work of breathing, exercise tolerance. Okay, if the work of breathing is increased during training, exercise tolerance is also increased. Training principle. Training principle is same as that of skeletal muscles, like overload, specificity and reversibility. Overload, we can obtain a training response. Muscle must be overloaded. ट्रेनिंग रिस्पॉन्स लेने के ट्रेनिंग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए हमें मसल को ओवरलोड करना बहुत ज़रूरी है। ओवरलोड कैन बी अप्लाइड बाय चेंज इन ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ इंटेंसिटी हम कैसे सेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि डिवाइस को अपने ट्रेनिंग डिवाइस को अपने मुंह में रखिए और पूरा फुल रेजिस्टेंस पे, पूरा फुल प्रेशर के साथ वो जो इंस्पायर कर सकता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का हम 50 to 70% यूज़ करते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जिस मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ एक ही बार पेशेंट पूरा प्रेशर के साथ इंस्पायर कर पा रहा है, उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस का हम 50 to 70% यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ में। तो उसको 50 to 70% रेजिस्टेंस को मेंटेन करके 30 ब्रेथ्स का हम एक सेशन सेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन 30 ब्रेथ्स, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ डे। ओके, स्पेसिफिसिटी इज लाइक द नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलस। हम कैसा स्टिमुलस दे रहे हैं। स्पेसिफिसिटी मीन्स हम स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहे हैं, एंड्योरेंस के लिए कर रहे हैं, या लंग वॉल्यूम्स को चेंज करने के लिए हम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिसिटी के अंडर आ जाता है। इफ वी वांट टू स्ट्रेंथन द मसल देन वी शुड हैव टू put a high load and low frequency to increase the strength. ठीक है, and for endurance के लिए हम low load with high frequency यूज़ करते हैं। and lung volumes के लिए हम for the lung volumes, respiratory muscle length is determined by lung volume, therefore IMT should be conducted over greatest range of lung volume possible। जो पेशेंट के lung volumes हम चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सलेशन एंड मैक्सिमम इनहेलेशन कराते हैं हम उस डिवाइस के थ्रू, अगर हमें लंग वॉल्यूम्स पे काम करना है पेशेंट के तो। ओके, पूरा मैक्सिमम इनहेल करिए
एंड पूरा मैक्सिमम एक्सेल करिए ट्रेनिंग डिवाइस के थ्रू. ओके. Reversibility, as respiratory muscle respond in the similar way to the other muscle when the training stimulus is removed. Most of the losses occur within the 2-3 months of the cessation of training, and endurance is lost for the strength. Okay. Effects of RMT. Effort related responses is like breathing effort, it will also going to reduce. Whole body effort will also going to reduce. Metabolic related responses, respiratory muscle fatigue will reduce. Breathing pattern will be good. Lactate turnover, heart rate, oxygen uptake kinetics will also change. Things that doesn't change, that is maximal oxygen uptake and maximum lactate threshold. जिस लेवल पे आपको लैक्टेट बढ़ना शुरू होता है, थ्रेशोल्ड जो है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है आपके बॉडी का, वो सेम रहेगा आरएमटी करने पे. ओके. Contraindications are like there have been no reports of adverse event following RMT, though there is a risk of barotrauma related events. Accordingly, cautions should be exercised in the following events: history of spontaneous pneumothorax, traumatic pneumothorax that has fully healed, or burst eardrum or other condition of eardrum, unstable asthma with an abnormally low perception of dyspnea. Unstable asthma भी contraindicated है. Practical issues like posture. पोस्चर प्रैक्टिकल इश्यूज में क्यों आता है? क्योंकि it plays a very big role. The ideal position for foundation training is sitting or standing, because recumbent and semi-recumbent postures are known to impair the respiratory muscle function and inspiratory muscles function. Okay. Once foundation training is complete, training in functional position can commence. Okay. एक बार अगर हम पूरे फाउंडेशन ट्रेनिंग एक पोस्चर में सिखा देते हैं उन्हें, स्टैंडिंग और स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन में हम सिखा देते हैं, आफ्टर दैट हम फंक्शनल पोजीशन में भी उन्हें सिखा सकते हैं. बट जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं वो पोस्चर आते हैं कि पोस्चर पेशेंट को ये बताना है कि आपको सिटिंग पोस्चर में करना है, बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग पोस्चर में करना है, एंड या स्टैंडिंग पोस्चर में आपको ये एक्सरसाइज करनी है. ऐसे नहीं कि आप स्टूप्ड शोल्डर के साथ ऐसे ही एक्सरसाइज कर लो. ओके. एंड ऑप्टिमाइजिंग ब्रीदिंग टेक्निक उनकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. हमें उन्हें ये डिवाइस देने से पहले ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखानी होती है, डायफ्राम ब्रीदिंग सिखानी होती है, ब्रीदिंग पैटर्न उनका कैसा है, ये सिक्रीशंस, ज़्यादा सिक्रीशंस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, बट सिक्रीशंस को रिमूव करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम डीप इनहेल करेंगे तो ब्लॉक के पीछे भी एयर जाएगी, और जब हम उसे कफ आउट करेंगे तो अच्छे से बाहर आ जाएगी वो सिक्रीशंस. ठीक है. असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन में यूटिलाइज मैक्सिमम रेस्पिरेटरी प्रेशर, स्निफ इंस्पिरेटरी प्रेशर, पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, ओके, एंड इंस्पिरेटरी मसल एंड्योरेंस. असेसमेंट इन सब चीज़ों से करते हैं हम. नाउ फाउंडेशन ट्रेनिंग, रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के लिए जो फाउंडेशन मेन ट्रेनिंग है वो कैसे स्टार्ट करते हैं हम. फाउंडेशन ट्रेनिंग इज अंडरपिन्ड बाय डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एंड अ ब्रीदिंग पैटर्न. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग सिखानी है और एक करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न सिखाना है. ओके. फिर हमें ट्रेनिंग के लिए डिवाइस यूज़ करना है. डिवाइस भी ठीक हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है. यूज अ ट्रेनिंग लोड ऑफ 50 to 60% ऑफ maximum inspiratory pressure, or set an intensity to a 30 repetition maximum. That is, repetition failure occur at 30 breaths using a process of trial and error. Okay. Using stretching and warm up to prepare for IMT. Inhale against load with maximum effort. Okay. Breathe in and out as far as possible during each breath.
Train twice per day, morning and evening, load not less than 6 hours apart. Increase the training load at least once per week. Training load हमें वीक में एक बार ज़रूर इंक्रीज करना है, दैट इज रेजिस्टेंस और बाय फ्रीक्वेंसी. ओके. Progress the training by maintaining it by 50 to 60% of new maximum inspiratory pressure. अगेन हम मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर को चेक करेंगे आफ्टर अ वीक एंड देन फिर से हम उसका 50 to 60% रेजिस्टेंस यूज करेंगे. ओके. और कीपिंग द लोड एट द न्यू 30 repetition maximum to account for improvement. Train to failure in a window between 25 to 35 breaths per session. Okay. Keep in mind that at certain times of day, other activities and health status may affect IMT because of residual fatigue. And if you suspect there is a residual fatigue of inspiratory muscle, take a day off and keep an IMT diary. Okay. So this is all about the respiratory muscle training, and according to me it is recommended to athletes and normal people, plus all the people who have dyspnea or all the conditions which I have described before you. Okay. Thank you.